A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Panigrain, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 10, and we are reading chapter 3, that is metals and non-metals. Okay, and this is your fifth part. We've already completed four different parts of this particular chapter, and if you haven't watched any of these parts or if you have missed any, then you can go down to the playlist and can view it. Okay. And if you have any doubt regarding this particular chapter, you can let me know in the comment section below. I'll definitely answer. Okay. So what we'll be reading today, before reading this particular part, fifth part, that is, let me tell you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so hoping so. Let's see what we are going to discuss today. Today we'll be seeing how to form NaCl, that is sodium chloride molecule, how to form MgCl2, that is magnesium chloride molecule, and what are ionic compounds or electrovalent compounds. Okay, so these are the three topics that we'll be covering in the valence. As I've told earlier, you must have done some particular, like, what do you say, revision. Like I told you to remember the particular elements from the periodic table from 1 to 30. So I hope कि आपने याद कर लिया होगा 1 से 30 तक, और इसके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आ गया होगा. ठीक है, इसी होप के साथ हम शुरू करेंगे. Because I can only tell you and you have to read. Okay, you have to give exams, so you have to remember 30 up to 30 elements तक आपको किसी तरह से atomic numbers याद रखने हैं elements के, और electronic configuration anyhow आपको लिखना चाहिए, आना चाहिए. Otherwise आप molecule formation करना and electrovalent compounds या आपका जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ये सब आप नहीं पता लगा सकते until and unless आपको 30 तक minimum you have to remember the atomic number of the elements. Okay, so I hope that you have brushed up, and if you haven't, it's a request to everyone to just go and do the brush up from 1 to 30, remember the atomic number and write the electronic configuration by itself, by themselves. Okay, and if you are having finding problem in writing, let me know in the comment section, I'll answer. Okay, so चलो फिर देखते हैं NaCl कैसे लिखते हैं, बनाते हैं. NaCl में क्या क्या चाहिए, Na होगा और Cl होगा. वेरी सिंपल. As we have already studied in standard 9th, सोडियम जो होता है वो Na प्लस है और Cl है, Cl माइनस है ना. हमें पता है कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट. सो ये होपफुली आपको याद होगा कि आप भूल नहीं गए होंगे. ठीक है ना. तो सोडियम यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे क्लोराइड एक एलिमेंट है. सोडियम में क्या चार्ज है, ऑलरेडी हमें पता है Na2 प्लस चार्ज होता है. ठीक है, Na प्लस होता है, अब ले लो Na प्लस होता है, नॉट 2 प्लस, Na प्लस होता है. क्लोराइड में Cl माइनस होता है. Now what is the atomic number of Na? It's 11, and Cl is, what is the electronic configuration? Now ये क्लोरीन का कितना होता है, कौन बताएगा मेरे को, क्लोरीन का कितना होता है बताओ. क्लोरीन is 17. Okay, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. ठीक है, कैल एंड ऑल. मैं भूल गई क्या, नहीं भूली, ठीक हूँ. ठीक है, कहाँ थी मैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ओके, सो इट्स लाइक दैट, बिकॉज मेरे को फास्ट बोलने की आदत है. सो इट्स लाइक यहाँ पे क्या पता चला कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड क्लोरीन का 17. वी ऑलरेडी नो. नाउ इफ आई नो आई कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू इट वेरी इजी. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 8 1 आई राइट इट. 2 पहले शेल में, 8 भर गया, 1 बच गया. तो मैं एक को मैं साथ लाऊंगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चले जाएगी. मैं एक को दे देती हूँ ना, दे दूंगी तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na प्लस बन गई मैं. ठीक है, वही क्लोरीन का दिखता है 7 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 8 7. अब मेरे को एक ही चाहिए, अगर मैं एक गेन कर लेती हूँ तो मेरा 8 हो जाएगा, फुल हो जाएगा मेरा शेल, मैं नेगेटिव हो जाऊंगी. तो Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बनेंगे. इट्स अ वेरी इजी वन, यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइट. दिस इज ओनली आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू राइट, because I'm making sure that you guys have read it already. ठीक है, because it's all up to you how you write it down. ठीक है, so you have to remember the periodic table, you have to remember the atomic number, and you have to know how to write electronic configuration.
only then you can know who is an electron positive one and who is an electron negative one. Okay, so this is very easily पता चल गया सोडियम 11 है, क्लोरीन 17 है, इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, एक ज़्यादा दिख रहा है दे दो पॉजिटिव बन जाओ, ये एक कम है ले लो नेगेटिव हो जाओ NaCl बन जाएगा, क्योंकि दोनों का 1 1 है, इसका +1 इसका प्लस माइनस, कोई चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है, कोई वैलेंसी लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा NaCl. ओके, इट्स वेरी इजी. सी दिस इज अ पिक्चर एंड दिस पिक्टोरल फॉर्म से मैंने डिपिक्ट करने की और समझाने की कोशिश की है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है और एक में हमारे पास 1 है. तो अगर मेरे पास लास्ट वाले शेल में आई कैन कीप 8 राइट, लेकिन अगर मैं 8 रखूँगी 7 लूँगी तो मेरे को बहुत ही एनर्जी चाहिए, तो मैं ये 1 दे देती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, पॉजिटिव बन जाऊँगी मैं. ठीक है, वैसे क्लोरीन में 17 है, फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8 और नेक्स्ट में 7 है, इसको 1 चाहिए, इसको दे देते हैं, इसका 8 हो जाएगा, मेरा इधर ऑलरेडी 2 8 है, ख़त्म. हम बना लेंगे Na+Cl-, तो Na+ सोडियम आयन बन गया कैटायन और यहाँ पे क्लोराइड आयन बन गया एनायन और मॉलिक्यूल का नाम क्या बना सोडियम क्लोराइड. ये पॉजिटिव चार्ज इज सोडियम एंड क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, दे फॉर्म NaCl आयन. ओके, NaCl कंपाउंड बना. ठीक है, बहुत ईजी है. Now the same way, and second example is magnesium chloride MgCl2. Okay, here again we have to find out, अगर आपको कोई भी लिखना है you have to know, you know how to write the particular formula, that is we have to know atomic number, right? So magnesium का atomic number है 12. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282, यानी अगेन मेरे को पता है लास्ट सेल में मैं 8 रख सकती हूँ, 6 लूँगी क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक काम करती हूँ 2 दे देती हूँ. ठीक है, 2 दे दूँगी तो मैं Mg2+ बन जाऊँगी. सिमिलरली क्लोरीन का मेरे को पता है 17, इसको क्या चाहिए 287, तो ये 7 क्या करेगा देगा क्या, नहीं, इसको बस एक ही चाहिए तो ये एक लेगा, एक बच गया है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, द अट्रैक्शन बिटवीन Mg2+ आयन एंड 2Cl- आयन्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl. MgCl2 होता है. ठीक है, यहाँ पे 2 मैंने छोड़ दिया है. द ओनली रीज़न इज़ दैट कि ये वाला Mg जो है हमारा, ये क्या हुआ, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिया, तब वो 2 8 बन गया. लेकिन क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन को एक ही चाहिए, अब क्लोरीन को एक चाहिए, वो एक तो अपना लिया, उसके पास और एक एक्स्ट्रा भी हो गया, तो वो एक्स्ट्रा भी रख लेगा, उसको बहुत लोभ है, उसको सब चाहिए. ठीक है, वो एक्स्ट्रा रख लिया, तो उससे क्या हो गया, अब Mg तो दे दिया, वो न्यूट्रल बन गया आराम से, उसका कोई टेंशन नहीं, वो 2 8 में रह गया. बस Cl के पास तो Cl को तो एक ही चाहिए था, तो एक तो लिया लिया वो और एक भी ले लिया, तो इसलिए वो MgCl2 बन गया. समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आई होप. Mg का तो सिंपल फंडा है, Mg को 2 नहीं चाहिए था, उसने दे दिया लास्ट वाला, लेकिन क्लोरीन को एक ही चाहिए था टू कंप्लीट इट्स शेल टू 8, उसने शेल कंप्लीट तो कर लिया, उसके बाद और एक एक्स्ट्रा Mg दे रहा है, तो सोचा कि ये बेकार क्यों जाए, मैं ही रख लेता हूँ, तो वो रख लिया और वो MgCl2 बन गया. ठीक है, so this is a very easy one and it can only be very easy for, even easier for you if you start writing it. Okay, very nice. Next, this is a pictorial one I guess. Okay, okay, कहाँ तक है, okay, यहाँ तक है. चलो, तो मैग्नीशियम का 2 दिया, अब मैग्नीशियम ने 2 अपने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स दे दिया और Mg2+ बन गया. ठीक है, तो यहाँ MgCl2+, तो Mg तो दे रहा है, मैं क्यों नहीं रखूँगा बोल के उसने रख लिया और 2 क्लोरीन को दे दिया. ठीक है, चलो, इट्स अ वेरी इजी वन एंड दिस वाज ओनली एग्जांपल फॉर द प्रीवियस फ्रॉम द प्रीवियस रेफरेंस ऑफ द क्लास इन द पार्ट 4, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर. तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, ये इजी है एंड दिस कैन ओनली बी रिटन वेरी इजीली, आप और इसमें मास्टर हो जाओगे अगर आपको पीरियडिक टेबल याद है और यू नो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन ओनली यू कैन राइट हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी आप कर सकते हो. ठीक है, वरना आपसे नहीं होगा. चलो नेक्स्ट, ionic compounds are compounds formed by the transfer of electrons from metal to non-metal. अब ionic compounds या electrovalent compounds में बोला जाता है, उसका क्या मतलब है. आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक मेटल से नॉन मेटल तक. जैसे कि आपने देखा पर्टिकुलर वाला MgCl2 NaCl, उसमें क्या होता है, Cl क्लोरीन क्या एक नॉन मेटल है, जबकि Na, ठीक है, Mg मैग्नीशियम सोडियम ये सब मेटल्स हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सोडियम या मैग्नीशियम जो है क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र हो रही है एक मेटल से नॉन मेटल, और तब वो क्या बन जा रहा है आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स. ठीक है,
उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जब पर्टिकुलर एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स एक नॉन मेटल को दे देता है, वो क्या बन जाता है, वो दानी बन जाता है। सो इट बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, okay, and that particular becomes electronegative, and the compound that is formed is either ionic compound or known as electrovalent compound. Okay, now what are the properties? They are formed by transfer of electrons and are made up of ions. ठीक है, तो दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही बनते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ आयंस, आयन एक्सचेंज से। ठीक है, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो। ठीक है, सॉलिड क्रिस्टलाइन, उनका स्ट्रक्चर तो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, उसके बाद दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी में सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पेट्रोल, केरोसिन, इनमें ये सोल्यूबल नहीं होते। MgCl2 नहीं सोल्यूबल होता है, NaCl नहीं सोल्यूबल होता है पेट्रोल, केरोसिन में। ठीक है, पानी में हो जाता है लेकिन। ठीक है, H2O में हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन। और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, किस केस में कंडक्ट करता है, ये जो होता है कंडक्ट करता है मॉल्टन स्टेट में। ठीक है, जब वो मेल्टिंग फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, सोल्यूशन में, तब जाके दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो Na+ क्यों मॉल्टन स्टेट या सोल्यूशन में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उस टाइम पे इनके जो आयंस होता है, लाइक Na+ या Cl- आयंस है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो आयंस होता है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, मूविंग फॉर्म में होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियसली, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, या आप 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, वही उसी टाइम पे 9th एंड ऑल में आपको पता है कि जो पर्टिकुलर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब बहुत अच्छी होती है जब पर्टिकुलर एटम्स जो होता है, या फिर जो भी छोटा, हाँ एटम्स, जो पार्टिकल्स होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो बहुत अच्छा मूव करे। तो जब वो सोल्यूशन या मॉल्टन स्टेट में होता है, तो इसमें क्या होता है, उनकी जो मूवमेंट होती है बहुत फास्ट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ वेरी गुड वे। ओके, सो Na+Cl- एंड ऑल। आयनिक बॉन्डिंग का देखो, यहाँ पे Na+ ये Cl- है, कैसे बन रहा है, Na एक दे रहा है क्योंकि Na के पास एक्स्ट्रा है और Cl- के पास एक कम है, बन के वो प्लस ये माइनस बन गया। ठीक है ना, समझ गए। नाउ सी दिस वन, व्हाट इज दिस वन, कैन एनीबॉडी टेल मी, बता सकते हो ये एक्चुअली में क्या है, कौन बताएगा मेरे को। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लिखा है। Okay, this picture is somewhat different. There is no caption written down there, so because of that, you may not understand. So यहाँ पे यही है कि सेकंड वाले पिक्चर में थोड़ी चेंजेस हैं। यहाँ पे ये था, ये पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, सो अज्यूम दैट इन सेकंड पिक्चर ये मॉल्टन स्टेट, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट इन द सोल्यूशन, इट शुड बी अ सॉलिड वन। ओके, द पिक्चर इज इटसेल्फ एंड द सेकंड वन इज रॉन्ग, बट द फर्स्ट वन व्हाट इट सेज कि फर्स्ट वन में जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी एक सोल्यूशन, एक मॉल्टन स्टेट से या सोल्यूशन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तब वो बल्ब चल रहा है। बट सेकेंड फॉर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म में वो लिक्विड नहीं है, अज्यूम इट इज सॉलिड। ओके, सॉलिड फॉर्म में जब हम पास करें तो बल्ब नहीं चल रहा है, बिकॉज क्योंकि आयन का जो ट्रांसफर है इन केस ऑफ लिक्विड इट्स वेरी फास्टर एज इन कंपेयर टू दैट ऑफ योर सॉलिड, because of which the conduction in the first picture is very easy because of the liquid available in that of the particular beaker, whereas in case of second one there is no particular liquid available, that's why the bulb is not being lit. Okay, so conduction of electricity अच्छा होता है in case of liquid, that's why the bulb is being lit in the first one. Okay, समझ गए? All right, so what we read today? Today we read how to write the formula of that of your NaCl. Okay, that was just a continuation of the previous part, part 4. तो अगर आपने part 4 नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ईजियर होगा समझने के लिए। ठीक है, और आप कभी भी फॉर्मूला देखते हो, आई एम टेलिंग यू many a times, the only reason is for your benefit, so that because there is no shortcut to learn anything in life. Okay, you have to read. तो आपको ये करना है कि हम आपको कुछ कुछ टिप्स ट्रिक्स दे सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, बट पढ़ना आपको ही है। ठीक है, सो आप भी पढ़ सकते हो, तो आप एक काम करो, किताब निकालो, टेबल वेबल याद करो, पीरियडिक टेबल पूरी याद कर लो। ठीक है, पूरी नहीं याद करना, 30
30 तक मिनिमम याद रखो, मिनिमम 30 तक, ज़्यादा याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट 30 तक एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर। 30 तक आप प्लीज़ पीरियडिक टेबल याद करो। उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर अपने आप याद हो जाएगा, तो आप आराम से एटॉमिक नंबर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बता सकते हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बहुत सारा प्रैक्टिस करो, सो दैट आपके लिए बहुत ईजियर होगा ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनाने में। ठीक है, उसके बाद फिर आगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? जब एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन्स एक नॉन मेटल को दे दे तो वो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलके मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मिलके एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर दैट इज आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उनकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ या लॉज हैं जो मैंने पढ़ा है, आप पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद जो है ओके, एंड द लास्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वन, दैट इज़ एक लिक्विड में कोई भी पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में लिक्विड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फास्टर होता है, एज वी ऑलरेडी नो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में या गैस में बहुत अच्छा, लिक्विड में सबसे ज़्यादा उसका जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Okay, whereas in case of solid, ions actually constrict होते हैं because of which they cannot conduct electricity in such way. So in whenever the ionic compounds, electrovalent compounds are in liquid or a molten state, they can conduct electricity. Alright, so this chapter is here. This not chapter, this part is here complete. This is the fifth part. ये बहुत बड़ा chapter है, ठीक है? So इसमें डरना नहीं है, पढ़ना है आराम से. And if you have any queries related to this particular part, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And और कुछ भी अगर जानना है तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर रिलेटेड या फिर किसी और चैप्टर रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और आप रिविजन करते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। ठीक है, क्वेश्चंस अपने से बना के पढ़ो बहुत सारा, आप आयनिक कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करो, टेबल याद करो, पीरियडिक टेबल। ठीक है, एंड राइट डाउन दी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल टुगेदर। ठीक है, तो बी कंसिस्टेंट, keep your particular concepts clear, and keep reading. Okay, and if you have any doubt regarding, let me know, and I'll be seeing you in the next class with a new particular part. Okay, until then I hope कि आप जो भी अगर पढ़ी नहीं हो तो पढ़ लो और याद कर लो, और let me know, let me see you in the, I'll be seeing you in the next class. Okay, until then have a good day and keep smiling. Bye.